क्या रिपीट कीजिए। हाँ मैं रिपीट करता हूँ. Okay. Last week we had a look at dissolution of gas into liquid. Yeah. Where we encountered about Henry's law of dissolution, which states that partial pressure on the gas is directly proportional to its solubility in liquid. Yeah. Similarly, we have dissolution of solids into liquids and liquids into liquids. Yeah. The second case is going to be, or second is going to be dissolution liquid into. Here, I mean, by liquid, we are trying to make sure that our liquid is volatile. It should not be a non-volatile liquid. Okay? And at the same time, इस चीज को सिर्फ लिक्विड बोलने के बजाय लिक्विड इनटू लिक्विड के फॉर्म में भी सोच सकते हैं हम, बट इट्स लाइक वी आर डिसॉल्विंग a volatile substance into a liquid which itself is a volatile. Volatile का मतलब जिनका वेपर प्रेशर सब्सटेंसिव होता है. वेपर प्रेशर सब्सटेंसिव होता है, उन लिक्विड्स को या सॉलिड्स को वोलेटाइल बोलते हैं. वेपर प्रेशर इज सब्सटेंसिव. ओके. यस. So यहाँ पर it's not precisely liquids, rather it is volatile components into liquid. Dissolution of volatile. अब वो volatile components जो होंगे ना, those volatile components are going to be volatile solutes into a volatile solvent. ठीक है, which is generally a liquid. Volatile solvent. और ये volatile solvent जो होगा ये definitely एक liquid होगा. ठीक है. However, volatile solute may be a liquid or a solid, like camphor. May be a liquid or solid, like camphor. Is that okay? यस. So, but मेजरली हम लिक्विड सिस्टम के फॉर्म में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिवाइडिंग फ्यू सॉलिड्स विच आर हाईली वोलेटाइल. उसके अलावा ज्यादातर वोलेटाइल सॉल्यूट जो होंगे दे आर गोइंग टू बी इन लिक्विड सिस्टम इटसेल्फ. So by liquid, what we are trying to, by liquid solute, I am trying to mean a volatile component or a volatile solute. ठीक है, liquid or volatile solute. This is being mixed with another liquid. This is a solvent, and solvents has to be always volatile. Solvent. This is also volatile. As in वो एक लिक्विड जनरली, मतलब एक लिक्विड होगा जिसका कुछ वेपर प्रेशर होगा,
and this is going to make us a solution. Okay, and obviously I said we are discussing about ideal solutions, right? Yes, sir. We are just talking about ideal solutions where delta H is equal to 0, delta H solution is equal to 0, and delta V solution is equal to 0, and delta V solution is equal to delta V solution. ठीक है? So अगर डेल्टा एच और डेल्टा एच सॉल्यूशंस दोनों जीरो है, that means इस लिक्विड के का जो वेपर प्रेशर था और इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, ठीक है, और when both of them are going to be mixed, obviously दोनों को अगर बराबर रेशियो में हम लेते हैं, यानी दोनों लिक्विड्स अगर बराबर रेशियो में रहते हैं, ठीक है, तो उनके वेपर्स भी लाइक प्रोपोर्शनल रहेंगे, राइट? जैसे एक यूनिट ये एक मोल ये रहा, एक मोल ये रहा, तो इसके इसका वेपर प्रेशर, नॉर्मल वेपर प्रेशर मान लो 200 टॉरिसिली है और इसका 400 टॉरिसिली है, तो सॉल्यूशन के ऊपर ये दोनों का इक्वल इक्वल एज एन इसका 200 के प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन रहेगा और इसका 400 के प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। अब चूंकि Yes, दोनों sir. 1:1 है, so this will be 200 into maybe 50% contribution will come from this, and 50, maybe नहीं exactly 50% of contribution will come from this, क्योंकि liquid one is contributing 50% into solution and liquid 2 is contributing another 50% into solution. So दोनों का वेपर प्रेशर 50-50%, and it will give us a net value of net vapor pressure of 300 to the solid, ठीक है। Now ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, ये जो एक्सप्लेन किया मैंने, this was first discussed by Raoults, a scientist named Raoults, ठीक है, and it is Raoults law. This actually expresses that partial vapor pressure of each
volatile component of solution is directly proportional to its mole fraction or relative presence mole fraction, that is relative presence in the solution. ठीक है, सपोज लिक्विड वन का प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर लिक्विड वन का is P नॉट में बी ए एंड इसका P नॉट बी है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इनका मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड स्टेट में लिक्विड वन का द मोल फ्रैक्शन में भी Xp and liquid 2 का मोल फ्रैक्शन है Xp such that X1 plus Xb should be equal to XA plus XB क्या हो जाएगा, it will be equal to 1. दो ही कंपोनेंट अगर बाइनरी कंपोनेंट है, बाइनरी सिस्टम है, तो XA plus XB will become 1. अगर मान लो तीन कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए. Is that okay? Yes. Okay. तो अभी इसके हिसाब से according to the law it states that the partial pressure of any component in solution, ठीक है, so suppose अगर प्योर प्रेशर लिक्विड वन का ये नॉट है तो सॉल्यूशन में इसका कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं, सॉल्यूशन जब बन गया तो इट इज कंट्रीब्यूटिंग लेट अस से PA डैश, ठीक है, और सेकेंड लिक्विड जो है उसके थ्रू जो कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज PB डैश. इज दैट ओके? PA डैश क्या है? Yes, sir. pressure due to vapors of liquid one, ठीक है, obviously in solution, and this is pressure due to vapors of liquid to solution. Is that okay?
Yes, sir. So what it says is PA dash is directly proportional to XA. ठीक है? Partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction. ठीक है? Similarly, PB dash will become proportional to XB and so on so forth. अब ये proportionality constant जो है ना, it has been observed that the proportionality constant in each case the proportionality can be replaced by constant, ठीक है, which we generally do anywhere. कहीं पर भी proportionality साइन है तो उसको हम एक constant से replace कर देते हैं, right? However, यहाँ Yes, पर जो constant है, ये constant universal constant नहीं होता है. Universal constant का मतलब क्या होता है? Constant हमारे पास कई एक टाइप के होते हैं. कुछ constants होते हैं जो सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं. सिस्टम स्पेसिफिक मतलब एक सिस्टम मैंने लिया तो उसके लिए कुछ वैल्यू अलग रहेगी, दूसरा सिस्टम लिया तो उसके लिए वैल्यू अलग रहेगी. टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करेगा, बट अगर आपने सिस्टम को चेंज किया, जैसे लिक्विड में वाटर लिया तो वैल्यू कुछ अलग रहेगी, और अगर हमने मान लो कुछ और ले लिया, जैसे केरोसिन ले लिया, तो वैल्यू कुछ और रहेगी. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? yes, sir. जैसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट ही है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट. सारे लिक्विड्स के लिए सेम नहीं है, अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग है, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट इज गोइंग टू रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट, बट दिस कांस्टेंट इज गोइंग टू बी कंपोनेंट डिपेंडेंट. ठीक है? by a constant which is component dependent, which is component dependent. Not only that, dependent. Okay, not only that, this constant was also found to be just equal to pure vapor pressure of the component, which is component dependent and is equal to pure vapor pressure of the component. Is that okay? So under this modified circumstances, what we can write, the PA dash will be equal to A naught plus XA. ठीक है? And PB dash will be equal to PB naught into XB. Now total pressure, total vapor pressure above
solution will be equal can be given as simply pt dash, ठीक है, which is nothing but ये dash plus pb dash. Is that okay? Yes, sir. Or it will be also equal to pa naught xa plus pb naught xb, ठीक है. फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं pt dash is equal to pa naught xa plus pb naught 1 minus xa. Why? Because xa plus xb as xa plus xb is equal to 1 for a binary system. Is that okay? We are talking about a binary system over here, only binary system. So this can further be written as pa naught minus pb naught into xa प्लस pb नॉट, ठीक है. या फर्दर इसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ pa नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस pb नॉट एक्स बी which will become equal to pa naught plus pb naught minus pa naught into xb. सो एक्स ए के टर्म में और एक्स बी के टर्म में ये दो इस तरीके से दिया जा सकता है. इज दैट ओके? Yes. ओके. अब ग्राफिकली अगर इस टोटल प्रेशर को हम डिनोट करने की सोचते हैं तो द ग्राफ इज गोइंग टू लुक और द रिलेशनशिप वुड बी गिवन समथिंग लाइक दिस. इट्स गोइंग टू बी अ टू डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है. यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहता है. मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ठीक है. इधर मान लेते हैं हम ए है पूरा और इधर बी है, तो क्या है यहाँ पर एक्स ए जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 और यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू क्या होगी 0. यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू क्या होगी 0 और एक्स बी की वैल्यू क्या होगी 1. यहाँ पर ओनली बी प्रेजेंट है जब हम यहाँ पर हैं तो मोल फ्रैक्शन के टर्म से, और यहाँ पर ओनली ए प्रेजेंट, ठीक है. दैट मीन्स बी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है.
it is increasing in this direction, this is increasing in this direction. A का प्योर वेपर अगर सिर्फ और सिर्फ A प्रेजेंट है तो इसका प्योर वेपर प्रेशर जो है दैट इज PA नॉट that will be present, right? Suppose it is equal to this one. ठीक है? This is PA naught और B का जो प्रेशर है प्योर वो सपोज ये है, ठीक है? अभी अगर मैं XB के टर्म्स में या XA के टर्म्स में किसी एक मोल फ्रैक्शन को वेरिएबल, ऑब्वियसली दोनों ही वेरिएबल है, दोनों को साइमल्टेनियसली वेरिएबल लेने के बजाय वी कैन टेक वन ऑफ देम एज वेरिएबल और दूसरे को रिप्लेस कर दिया है हमने वन माइनस द अदर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, जिससे हमको इस तरह का रिलेशनशिप आया। तो हमारे पास एक मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल एंड रेस्ट सारी चीजें हमारे पास। नाउ टोटल प्रेशर को अगर मुझे इंडिकेट करना है, टोटल प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन जो है दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप है इनका। इज दैट ओके? Yes. है ना? अरे इट इज y इज इक्वल टू mx इंटू सी, सॉरी mx प्लस c, Yes, sir. राइट ना? और या दूसरे जगह पर देख लें mx प्लस c यहाँ पर भी है। So the final graph is going to look something like this. It will be a straight line joining this curve, these 2 points. Is that okay? Yes, sir. ठीक है। इसमें a की वैल्यू जब 0 होगी ये रखेंगे तो this will become PB naught. So and b की वैल्यू जब 0 होगी तो it will become pure K naught. Otherwise it will be somewhere in between. ठीक है? So the graph is going to look like this. अब इसमें थोड़ा सा जब ये आइडियल ग्राफ हमने, और इसी को बोलते हैं राउल्स लॉ, अगर इस लॉ को फॉलो करता है कोई भी सॉल्यूशन देन वी कॉल इट अ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है? और अगर नहीं फॉलो करता है तो वी कॉल इट एन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है? शुरू में डिस्कस किया था हमने। अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, दो टाइप के होते हैं, राइट? Yes, sir. सो पॉजिटिव डेविएशन जब हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन तब क्या हो रहा है? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो हैं, सॉल्यूशन जो फॉर्म हुआ उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है कंपेयर टू कंपोनेंट्स बढ़ गया है, तभी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, Yes, sir. ठीक है? और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या इंटरैक्शन जो है वो कम हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या इंटरैक्शन कम हो गया है, राइट? दे आर बोथ consistent with each other or they go hand in hand with each other. Making sense? Yes, sir. तो अभी वेपर प्रेशर कैसा होगा? If interaction has loosened, वेपर प्रेशर कैसा होगा? Will it increase or decrease compared to the ideal scenario? वॉल्यूम क्यों बढ़ा है? क्योंकि इंटरेक्शन कम हुआ है आइडियल के कंपैरिजन में। Yes, sir. तो अगर इंटरेक्शन कम हुआ है तो प्रेशर के ऊपर कैसा, वेपर प्रेशर के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होएगा इसका? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज?
डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में आइडियल के कंपैरिजन में इंटरेक्शन अगर कम हुआ है, राइट, दे आर लेस अट्रैक्टिव ईच अदर, लेस अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, तो पार्टिकल्स जो डिफ्यूज होकर के या वोलेटाइल होकर के बाहर निकलेंगे, उनकी क्वांटिटी कम होएगी या बढ़ेगी? यस सर, बढ़ेगी। अगर यहाँ पर बाइंडिंग स्ट्रेंथ को कम कर देते हो तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर एस्केपिंग आउट विल इंक्रीज, राइट? यस सर। ठीक है ना? सो पॉजिटिव डेविएशन जब भी होगा राहुल, तो ये ग्राफ जो है हमारा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ curvy line in which it will be something like this. ठीक है? Going above, having vapor pressure more than ideal vapor pressure. ठीक है? यस सर। Having vapor pressure more than ideal vapor pressure, और more than ideal vapor pressure होगा, इसका मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? This solution will have higher boiling point than ideal solution, or will have lower boiling point than ideal solution. What's your take? Boiling point क्या होता है? Basic definition: when vapor pressure of a liquid becomes equal to 1 atm, that pressure is called vapor pressure. Am I right? यस सर। ठीक है ना? If that is your vapor pressure, how will it change? Sorry, if that is boiling point, how will it change? अगर आपका प्रेशर आइडियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में बढ़ गया है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो 1 atm टच करने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा राइज करना पड़ेगा या कम राइज करना पड़ेगा? क्या हुआ? कम राइज करना पड़ेगा। कम राइज करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में? इट विल बी स्मॉलर, डिक्रीज रहेगा, कम रहेगा। ठीक है? सो यस सर। दिस पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है Bp of such solution boiling point of such solution will be less than boiling point of ideal solution। मतलब यही सॉल्यूशन अगर आइडियल होता तो उसका जो एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट होता उसके कंपैरिजन में कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इस सॉल्यूशन, पॉजिटिवली डेविएटिंग सॉल्यूशन। अब आते हैं नेगेटिवली डेविएटिंग सॉल्यूशन के ऊपर। नेगेटिव डेविएशन ये दिख रहा है येलो ना? यस सर। नेगेटिव डेविएशन पर क्या होगा? डेल्टा H is going to be less than 0, delta V is going to be less than 0. That means stronger interaction between
solute and solvent, इसका रिपरकशन क्या होगा? Vapor pressure of solution will be less than ideal solution. Is that okay? अगर stronger interaction between solute and solvent रहेगा compared to ideal solution, the vapor pressure of solution will be less than the ideal solution. Than of ideal solution. ठीक है? So अब जब ये हो गया, इसका फाइनल क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट पर इम्पैक्ट, such solution will have higher BP, higher boiling point than ideal solution. ठीक है? और इसका ग्राफ कैसा रहेगा प्रेशर डिविएशन का? It is going to look something like this. Is that okay? So this one is negatively deviating, this is positively deviating. Positive deviation from ideal gas, and this is negative deviation, ideal gas, ideal solution from ideal solution, and this is negative deviation from ideal solution. Is that okay? Yes. ठीक है. So take it down. ऊपर वाली चीजें नोट कर ली थी आपने? Yes, sir.
noted? Yes, sir. देखो, लास्ट जो सिस्टम डिस्कस किया हमने, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन का और प्रेशर वेरिएशन का सॉलिबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैन वी एनालाइज दैट? वी हैड लिक्विड 1, ठीक है, प्लस लिक्विड 2 गिविंग अस a solution. ठीक है, अभी क्या है कि ये अगर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो डेल्टा एच हो गया इसका 0, डेल्टा एस ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव रहेगा, तभी ये सॉल्यूशन बनेगा। अब डेल्टा एच अगर 0 है तो टेम्परेचर वेरिएशन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा? टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो free energy of the solution will start decreasing more, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, राइट? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट विल बिकम मोर एंड मोर फेवरेबल, क्योंकि डेल्टा जी ज्यादा से ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, मोर एंड मोर सॉल्यूशन विल बी फॉर्म, ठीक है? सॉल्यूशन फॉर्मिंग यानी डिसोल्यूशन जो होगा दैट विल बी फॉरवर्ड फेवर्ड. इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है ना? सो solubility will be directly proportional to solubility will be directly proportional to temperature. You increase the temperature and your solubility will increase. ठीक है? नंबर 1. एंड प्रेशर के साथ इसका कैसा रहेगा? What will happen to the pressure? How will it respond to the pressure? Liquid and solution. So if I'm going to suppose increase the pressure, ठीक है? ये एक सॉल्यूशन है, और इसके ऊपर वेपर्स है इसके. Now if by some means I increase the pressure, एक सिस्टम लगा करके यहाँ पर
और इसको मैंने प्रेशर को कर दिया इंक्रीज, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? What will be the impact? These vapors will come and settle down into the solution phase, right? So if I increase the pressure, the solubility is going to increase. And if I decrease the pressure, the solubility will decrease. Is that okay? Hello? Yes, sir. ये बात clear है? Yes, sir. This is for ideal solution. अब अगर नॉन आइडियल पॉजिटिवली डिविएटिंग है तो टेम्परेचर के ऊपर कैसी डिपेंडेंसी होगी? फिर से हम लोग यहीं पर देखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस माइनस डेल्टा एस इंटू टी। डेल्टा एच क्या है मेरा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिविएटिंग है तो, ठीक है। और डेल्टा एस एक डेल्टा एस हमारा ये है और पॉजिटिव, डेल्टा एस तो पॉजिटिव रहेगा ही, पॉजिटिव पॉजिटिव डिविएशन है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि इंटरेक्शन लेवल कम हुआ है, ठीक है। और अगर इंटरेक्शन लेवल कम हुआ है पार्टिकल्स में तो दे आर ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम, दैट मींस दे हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो ज्यादा ये डिसऑर्डर होगा, ज्यादा डिसऑर्डर होगा या एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन दिस केस एटलीस्ट। सो डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? द मोमेंट वी इंक्रीज टेम्परेचर दिस इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव, and if I decrease the temperature the delta G will become less negative. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So solubility will be again solubility will be directly proportional to temperature, ठीक है। प्रेशर के साथ ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी, हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। वोलेटाइल कोई भी कंपोनेंट्स रहेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे हम तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। सो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। एनीवे solubility will be directly proportional. Solubility will be directly proportional. नेगेटिव डिविएटिंग में क्या होगा? ठीक है, उसका डेल्टा एच कैसा होता है? लेस देन जीरो। डेल्टा एस कैसा होगा? Will it be greater than 0 or less than 0? बताइए।
कैसे सोचोगे? हम्म, हेलो दानिश, हेलो दानिश, हेलो दानिश, हेलो दानिश, right? Yes, sir. What about delta S? How will delta S vary? Will it be greater than 0 or less than 0? Less than zero. Less than 0? Why? फिर डेल्टा जी नेगेटिव आने की। नहीं, डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तभी ये निगेटिव ही आएगा ना. दैट्स नॉट द रीजन. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? डेल्टा एच निगेटिव है तो डेल्टा वी भी निगेटिव होगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है. दैट मीन्स इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा है पार्टिकल्स का. ठीक है, Yes, sir. यानी डिसऑर्डरनेस जो होगा वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी होगा उतना ज्यादा डिसऑर्डरनेस हो सकता है.
वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपेंसी कम हुआ तो फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपेंसी कम होगा तो डेल्टा एस ऑब्वियसली कम हो जाएगा, सॉरी Yes, sir. इंट्रोपी कम हो जाएगा या फिर डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा, सो दैट इज द रीजन। ठीक है, Yes, sir. सो एंट्रोपी को जनरली आपको वॉल्यूम स्पेस अवेलेबल फॉर अ कंपोनेंट के हिसाब से ही देखना होगा। दैट इज अ वे टू लुक एट इट। द रीजन फॉर मी डिस्कसिंग दिस इज कि ये वॉल्यूम के साथ जो एंट्रोपी की रिलेशनशिप है उसको एक बार थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। जनरली थर्मोडायनेमिक्स में करने के बाद हम लोग भूल जाते हैं, तो वी नो कि एस के लिए क्या, डेल्टा एस के लिए क्या रिलेशनशिप है, बट फिर भी हम फॉर्मूला थोड़ा सा भूलते हैं और कॉन्सेप्ट तो कंप्लीटली गॉन हो जाते हैं, देयरफॉर इट इज अ रिविजिट टू इट। ठीक है, so this is all about a liquid or volatile system solution. Now the third system is going to be Sir, solubility कैसे रिलेटेड होगी? क्या क्या? तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव अच्छा, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? हाँ देखो, डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव निगेटिव है। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये निगेटिव है और ये निगेटिव साइन है, तो दिस कंपोनेंट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। डेल्टा एच निगेटिव है और ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है, यानी ऐड करेंगे तो डेल्टा जी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इफ माई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, डेल्टा जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। यस सर। और इंक्रीजिंग डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? It is going to be less or less and less forward moving, less and less forward यस moving, सर। moving मतलब less and less solubility, right? So solubility is going to be inversely proportional to temperature. Is that okay? यस सर। Very good. Now we will have a look at the third scenario. Of dissolution of a non-volatile solute into volatile solvent. Volatile solvent का मतलब liquid solvent, this is non-volatile solvent, generally solid solvent. Yeah.
हेलो। अब देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, इसका प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा? Let us call it PA naught, but this will be 0, ठीक है। एंड इसके को हम PB naught बोल सकते हैं। Why it will be 0? Because it is non-volatile, right? yes sir. नॉन वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, 0 रहेगा। लिक्विड जो है वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर कुछ रहेगा। अब फाइनली, और मोल फ्रैक्शन, रिलेटिव प्रेजेंस या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन components, this will be XA and this will be XB। अब इनके थ्रू इनका contribution to the solution's vapor pressure will be how much? This will be PA dash, which will be equal to XA into PA naught, and ये होगा PB dash is equal to XB into PB naught। ये कंपोनेंट 0 है, ये वाला चीज 0 है, therefore PA dash will become 0, PB dash will remain as it is, therefore P total क्या हो जाएगा, PA dash plus PB dash, which is equal to just XB into PB naught, ठीक है। Isn't it? ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. ठीक है। So PT dash will be, in this case, P total, pressure total, total vapor pressure will be simply XB into PB naught. That means the total vapor pressure, I mean volatile component, pure volatile component का जो vapor pressure होता है, that will get decreased by the mole fraction times of that component। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होएगा, मान लो 0.30% उसका कंट्रीब्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में 30% हो जाएगा। अगर 70% लिक्विड का कंट्रीब्यूशन है तो इट विल बिकम, द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बिकम 70% ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दिस थिंग। इज दैट ओके? Yes sir. अरे मैंने सर एक अनंत से